Hello, my dear friends. In chemistry lecture, in previous lecture, we discussed regarding what is science, disciplines of science. Among them, one discipline is chemistry. Types of chemistry means different branches of chemistry we discussed. Other new branches of 21st century we discussed. What is chemistry? Also discussed. And why we have to study chemistry, because chemistry is an important subject in our life. So let us discuss the importance of chemistry in our life systematically by dividing different areas. Among them, first area is, write down first this question in your book: give importance of chemistry. We will discuss first the chemistry for meeting our basic needs and necessities of life. You know very well chemical fertilizers, insecticides, and pesticides. To increase the yield of crops and fruits necessary today. Without fertilizers, insecticides, and pesticides, you cannot increase the yield of crop and fruits. Whenever there is a sites written in any word, then these sites means killer. Sites is equal to killer. Insecticides means insect killer. Pesticides means pest killer. Second one is the preservatives. See, in packed food, the food can be preserved for longer period if some chemicals are added in it. Which preservatives, it means which chemicals are used as a preservatives, that we have to study in 12th standard. One chapter is there, chemistry in everyday life. So here names are not important. Here our main aim is to explain what is the importance of chemistry. Chemistry also help us for better health and sanitation. Another word is famous nowadays, that is sanitization. And sanitization is nothing but the ethyl alcohol major component. See, if sanitization material is not there, then imagine what happens nowadays. Another thing, in hospital, during major damage in body or disease in body, or in critical conditions, accidents, if surgical operation is required, then first we have to put patient in a unconsciousness. So for that the chemical used, that is called anesthetics. When anesthetic is given to patient, then the patient's central nervous system becomes inert. So pain is not felt. And after 1 hour, 2 hour, according to the dose of anesthetic,
the surgery may be completed. Another fifth thing, chemistry has given us varieties of drugs, among them some important drugs I have written here, not all written. Among them, first drug is the antipyretics. Pyre means heat. If person suffering from fever, then to reduce fever or to decrease the body temperature, the tablet is given, injection is given. That is called antipyretics. For example, metacin, paracetamol, kefipar, etc. Analgesic, to relieve pain. Is there pain anywhere in our body? Headache, body ache, muscle ache, etc. Then person given analgesic. And in India, lot of quantity analgesics used. Whenever there is a pain, दांत में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है और कहीं प्रॉपर पार्ट पे दर्द हो रहा है, ठीक है, तब एनाल्जेसिक दिया जाता है. जैसे हम स्टोपेक लेते हैं, ठीक है, सर दुखता है तो एनासिन लेते हैं. इसके बाद नेप्रोक्सिन लेते हैं. ये सब एनाल्जेसिक. अगर आदमी स्ट्रेस और एंजाइटी से पीड़ित है, तो मतलब कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन and more than that severe mental diseases, at that time the person is given tranquilizer. Tranquilizers means to cure mental diseases. ये पागल आदमी को ठीक करने वाली दवा है. हालांकि ये ट्रैंक्विलाइजर विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर यू कैनॉट टेक. इससे भी बढ़िया बात, और काफ़ी मेडिसिन है, जैसे एंटी फर्टिलिटी है, एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोफंगल है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स है. ये सब मेडिसिन जो है हम यूज़ कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो मार्केट में केमिस्ट्री की हेल्प से 3 मेडिसिन अवेलेबल है. एक का नाम है सिस्प्लेटिन, टेक्सोल एंड एजिडोथाइमिडिन. शॉर्ट में उसको बोलते हैं एजेटी. ये सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल इज द वेरी इफेक्टिव मेडिसिन टू क्योर कैंसर नाउअडेज. हालांकि आपने सुना है केमोथेरापी, लेकिन केमोथेरापी तो लास्ट ट्रीटमेंट. अगर कैंसर प्राइमरी या तो मिडल स्टेज में, तब आदमी को सिस्प्लेटिन टेक्सोल दिया जाता है. ये प्लेटिनम की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेडिसिन है सब. इससे बढ़िया बात है एजिडोथाइमिडिन. ये अकेली मेडिसिन मार्केट में है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एजेटी, हेल्पिंग इन एड्स. हालांकि एड्स की अभी जो परफेक्ट एड्स को क्योर कर सके ऐसी कोई मेडिसिन मार्केट में है नहीं. फिर भी ये जो मेडिसिन है काफ़ी हद तक, माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी हद तक एड्स पेशेंट को रिलीफ देती. तो मैं ये मेडिसिन पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू क्योर कैंसर. ये सिस्प्लेटिन है, हम केमिस्ट्री में बोलेंगे कंपाउंड, लेकिन है ये मेडिसिन. टेक्सोल वो कंपाउंड है मेडिसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्योर कैंसर.
गुजकेट में काफी बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल टू रिलीव एड्स, नॉट टू क्योर एड्स, क्योंकि एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। सिर्फ ये एक अकेली मेडिसिन है जिससे आदमी को राहत मिलती है इस डिसीज में। एजेटी शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, तो मैंने कितने एरिया कवर किए? अभी मैं मेन बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसमें मैंने एक तो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सेकंड इज प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर टाइम, better health and sanitation, anesthetic to make patient unconscious during the surgical operation in severe conditions। उसके बाद वैराइटीज ऑफ ड्रग्स जो आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसमें इम्पोर्टेंट लिस्ट मैंने दिया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो कुछ मैंने लिखी है और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाली सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, एजेटी। इसमें से ये 3 ड्रग, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ड्रग्स नॉन एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स। आपको पता है कि कैंसर में आदमी कंफर्म मर जाता है, एड्स में तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये एजेटी से थोड़ा आप उसको 2, 3, 4, 5 साल लाइफ उनकी बढ़ा सकते हो। फिर भी ये 3 ड्रग, उसको टाइटल दिया गया है कि लाइफ सेविंग ड्रग, ये जिंदगी बचाती है। उसमें तो क्या है कि आपको फीवर है तो फीवर रिड्यूस कर रहे हैं, लाइफ जाने वाली कोई बात नहीं, आदमी मर नहीं जाता है उसमें। पेन हो रहा है तो पेन में आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, मेंटल सीवियर डिसीज है तो उसको रिड्यूस करना चाहते हो। लेकिन यहाँ तो लाइफ का सवाल है, इसलिए ये 3 मेडिसिन सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड एजेटी, उसका पूरा नाम आगे लिखा है, ये 3 जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है। याद रखना, बाकी कोई ड्रग्स लाइफ सेविंग ड्रग्स में नहीं आता, कि सीधा लाइफ के साथ रिलेशन होता है इन डिसीज का, कैंसर का। हाँ, इसमें दर्द वो तो दूसरी बात है, लेकिन कंफर्म है कि आदमी एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ देगा। अब मैं दूसरा फील्ड पकड़ता हूं, केमिस्ट्री फॉर आवर कंफर्ट, वो थी हमारी नेसेसिटी कि इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। ये बी पार्ट ऐसा है, इसके बगैर आप रह सकते हो, यू कैन सर्वाइव विदाउट दिस। लेकिन फिर भी हम हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे प्लेजर के लिए, हमारी लग्जरीज के लिए हम बाहर निकलते हैं तो पाउडर लगा के या कुछ क्रीम लगा के, लोशन, लिनिमेंट, परफ्यूम, वो क्या है? लग्जरीज। प्लेजर, नशा करते हैं, दैट इज नथिंग बट प्लेजर। शराब पीते हैं, सिगारेट पीते हैं, सब सिगारेट, व्हाट इज दैट इन दैट? निकोटीन इज दैट। किसी के लिए खाना प्लेजर होता है ना, तो वो भी एक केमिकल है। तो हमारे कंफर्ट के लिए हम लोग सोफा सेट यूज करते हैं, टीवी सेट यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। उसकी जो बॉडी है वो सब एलॉयज है, अंदर 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 जो माइक्रोचिप्स है वो सब सिलिकॉन है, सेमी मेटल, सी द पीरियोडिक टेबल। तो मैं अगर इसका लिस्ट करने जाऊं तो बहुत ही लंबा, 1 घंटे तक इसकी डिस्कशन चलेगी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कवर हो जाए इसी तरह लिस्ट करूं तो पहली चीज आती है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। बेसिक रिक्वायरमेंट, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बिल्डिंग मटेरियल सब देख लो, सिंथेटिक फाइबर्स, आप जंपिंग रोप का यूज करते हो, नाइलॉन रोप का यूज करते हो, दे आर द सिंथेटिक फाइबर्स।
रेनकोट सिंथेटिक फाइबर, वैरायटीज ऑफ आर्टिकल्स, आप मोन्यूमेंट्स देखते हो, ब्रिजेस देखते हो जो आयन, आरसीसी में हम आयन यूज करते हैं, और कुछ जो हम डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आप नॉन स्टिक यूज करते हो, ओवन यूज करते हो, ऑल आर द एलॉयज और दे आर पॉलीमर्स। और जो चीज हम हमारे कंफर्ट के लिए, प्लेजर के लिए यूज करते हैं, आइदर दे आर द कॉस्मेटिक्स, पहले मैंने आपको बोला कॉस्मेटिक्स, दे आर एसिड्स और दे आर अल्कलीज, सोल्ट्स, डाइज। अब एक बार सोचना कि डाइज का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। हेयर कलर, बॉडी के ऊपर टैटूज करवाना, ठीक है, अपने घर में वॉल पेंटिंग, वॉल डिजाइन, कपड़े के ऊपर कलर पेंटिंग। हम जब ड्रेस मटेरियल्स लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? बाकी सब में कॉटन ही है वाइट कलर का, उसके ऊपर डिजाइन और कलर ही देखते हैं। पॉलीमर देखिए आप, इसके बारे में अभी मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलीमर इज द एलोन चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड। एट दैट टाइम वी विल डिस्कस सोप। आंखें बंद करके एक बार सोप को साइड में कर दीजिए कि हमारे जीवन में सोप नहीं। अब देखिए सुबह से शाम तक आप कितने परेशान हो जाओगे। परफ्यूम्स, यू नो वेरी वेल। डिटर्जेंट को निकाल दीजिए लाइफ में से। एलॉयज, आजकल एलॉयज की बहुत डिमांड है मार्केट में। एलॉयज आर नथिंग बट द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। प्योर मेटल्स, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी। नॉन मेटल्स, डायमंड ज्वेलरी, ग्रेफाइट, फुलरेंस, सिलिकॉन फॉर दैट इलेक्ट्रिक सेल। आप मोबाइल में अगर बैटरी निकाल दो तो मोबाइल में जो बैटरी है उसमें उसके ऊपर लिखा है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम क्या है? आप पीरियोडिक टेबल में जाओ, पहला ग्रुप देखो, उसका पहली मेटल जो है वही लिथियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सो ऑल दिस प्लेस, अगर मैं इसको डिटेल में लिखने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे प्लेजर के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए, हमारी लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है सब केमिकल्स। और डे टू डे लाइफ, एक दिन अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। देखिए, अब तीसरा पार्ट में लेता हूं कि केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल। आज की डेट में जो है तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ले जाओगे तो आपका लाइट बिल कम आएगा। ऐसा क्यों भाई? तो उसमें सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो उसमें रेजिस्टेंस कम क्रिएट करते हैं। ऐसे सिरामिक आजकल बनने लगे हैं केमिस्ट्री में। सुपर कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनने लगे हैं जो आप कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर की जगह पे ले सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स, इसका तो क्या कहना। आप 3G 4G जो यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो, आजकल एक कंपनी का जो ऑप्टिकल फाइबर से आपके घर नेट स्पीड आ रही है, ठीक। डे बाय डे आप HD टीवी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सब आता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट बोल रहा है, आप सीधा लाइव देख रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बोल रहे हैं, आप सीधा अपने टीवी पे लाइव देख रहे हो। ये सब जो करामत है माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर्स। माइक्रो एलॉयज, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। कार्बन फाइबर्स, दे आर ऑल्सो, दिस माइक्रो एलॉयज एंड कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन अवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप देखते हो कि 6 महीने में मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, हर एक इलेक्ट्रिक चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है कि इसमें अब ये नया आया। ये सब पॉसिबल है ड्यू टू माइक्रो एलॉयज एंड कार्बन फाइबर्स। फिर भी इतना सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या बाकी है। तो इसमें
ये तो सब है हमारे पास, तो क्यों पढ़ने की झंझट करे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपके सामने द कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री, require intelligent chemist to overcome some challenges। सबसे बड़ा है प्रॉब्लम आज की डेट में, आपको पता ही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। So recently the chemist day and night tried to reduce this pollution by using some chemicals in place of hazardous chemical, in place of harmful chemicals. So many examples are there। 11th में ही लास्ट चैप्टर है, उसका टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। थोड़ा एक दो पैराग्राफ में दिया है, लेकिन इससे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आजकल ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप। इसका एक एग्जांपल दूं कि पहले रेफ्रिजरेटर में, कूलिंग सिस्टम में CFC यूज होता था, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गुजकेट में, पहले जब बोर्ड में था सिलेबस में तो पूछते थे, आजकल ये JEE मेन की एग्जाम में आ रहा है। ये CFC जो है, दिस CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर AC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्रेशन। और ओजोन लेयर जब डिप्लेशन मतलब वो ख़त्म हो जाए तो आपको पता है कितना डैमेज होता है। आप 8, 9, 10th में पढ़े हो। तो जितना CFC ज़्यादा यूज़ करेंगे इतना ही ओजोन लेयर डिप्लेशन ज़्यादा होगा, अल्ट्रावायलेट रेज की हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगी। तो आप जैसे साइंटिस्ट ने मिलके, स्पेशली केमिस्ट ने मिलके इसका अल्टरनेटिव ढूंढ निकाला। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने CFC की जगह पे एक नया कंपाउंड बनाया, इसका नाम दिया 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, उसको मार्केट में बोलते हैं HFC। ये C की जगह पे H लगा दी, लेकिन उसका केमिकल नेम ये कॉम्पिटिटिव, साथ में मैं थोड़ा आपको गाइडेंस दे रहा हूँ इसलिए नाम लिख रहा हूँ, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये। आप 11th में जैसे पढ़े हो, सॉरी 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक चैप्टर आता था, तो आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है। अगर मैं इस कार्बन को नाम दूं एक, इसको दूं दो, गिव द नंबर फ्रॉम एनीवेयर, आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। फोर्थ वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये वन कार्बन के ऊपर एक फ्लोरीन, अगेन ऑन वन कार्बन एक फ्लोरीन, ये सेकंड नंबर कार्बन अगेन एक फ्लोरीन, ऑन सेकंड नंबर कार्बन अगेन वन फ्लोरीन। तो ऐसे लिखा है 1122, जहां पे फ्लोरीन है उसका नंबर लिखें, कितनी बार है तो के 4 टाइम्स, तो उसको बोलते हैं टेट्रा। 4 मीन्स टेट्रा, टेट्रा फ्लोरो। और ये कंपाउंड जो है, अगर फ्लोरीन नहीं होते तो ये इथेन था। ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाई नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी केमिस्ट्री है। आपने 10th में ये इथेन पढ़ा है। ये 4 हाइड्रोजन निकाल के कितना इजी था, लेकिन जिसको भी आइडिया आया, आजकल ऐसे साइंटिस्ट और केमिस्ट की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे आज की डेट में कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए कि नहीं ऐसा कुछ करना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा चैलेंज हमारे पास है ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो है आपको पता है कि आजकल टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, 40 के अप चला जाता है। तो ऑल दिस ग्रीन हाउस गैसेस वी हैव टू रिड्यूस।
और इसका अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकलता है, और भी गैसेस है, लेकिन ये दोनों मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है। आज की डेट में भी हमें बायोकेमिकल कुछ ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिसका पता नहीं चला है। एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में कैसे काम कर रहे हैं, हालांकि नॉलेज है बायोलॉजी की हेल्प से, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आज की डेट में ऐसे हैं कि ये जो एंजाइम्स जो है लार्ज स्केल में हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म कहीं और सीक्रेट हो रहा है, कहीं और जा रहा है, पूरा मैकेनिज्म आज तक पता नहीं है हमको। ब्रेन का जो फंक्शन है ये पूरा आज तक हम नहीं जान पाए। हमारी बॉडी में एक्सोटिक मटेरियल, पॉइजनियस मटेरियल कैसे प्रोड्यूस होता है, वो भी हम जान नहीं पाए आज तक, क्या मैकेनिज्म होती है। तो इतनी डिस्कशन के बाद मैं ये बोल सकता हूं अब, और आप भी एक्सेप्ट करोगे कि इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। हालांकि पढ़ने में अच्छा लगे ना लगे दूसरी बात है, लेकिन लाइफ में केमिस्ट्री को निकाल दो तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन था गिव इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा मैंने हिंट्स दे दी थी पहले लेक्चर में, लेकिन अब ये डिटेल और सिस्टमेटिक मैंने लिया है, आपसे डिस्कशन की है। अब हम पहले चैप्टर में एंटर हो चुके हैं, इसका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, इसका मतलब है वी नो दैट। जब भी मैं कहीं पे w.k.t लिखता हूँ, इसका मतलब है वी नो दैट द एंटायर यूनिवर्स, नॉट ओनली अर्थ, इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। डेड बॉडी में मैटर होती है लेकिन एनर्जी नहीं होती है, लिविंग बॉडी में मैटर और एनर्जी दोनों होते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं मैटर की, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट्स कॉल्ड मैटर। यहाँ पे लिखा मैंने बुक, पेन, टेबल, क्यूब ऑफ शुगर, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आयरन रोड, वाटर, एयर एट्सेट्रा, काफ़ी लिस्ट हो सकता है, लेकिन ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिस्ट कीजिए। और एक हम चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने दिया है, इट इज़ ऑलरेडी नॉट इन अवर टेक्स्ट बुक, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैटर और मटेरियल में क्या फ़र्क है। मैटर जो है बहुत ही वाइड एंड साइंटिफिक वर्ड है, मटेरियल जो है वो साइंटिफिक वर्ड नहीं है। मटेरियल वर्ड इज अवर डेली रूटीन लाइफ वर्ड। मैटर हैविंग स्पेसिफिक यूजेस, जैसे कि हमें एक ड्रेस बनानी है तो हम बोलेंगे कि इसमें ड्रेस मटेरियल्स, दुकान पे लिखा होता है ड्रेस मटेरियल्स। ठीक है, काफ़ी दुकानें ऐसी होती है, शॉप्स ऐसी होती है जिसमें लिखा है ये मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मटेरियल्स मतलब कि उसका स्पेसिफिक यूज हो जाता है। मैटर मतलब कि किसी को भी मैटर आप बोल सकते हो। तो एक साइंटिफिक स्टेटमेंट में मैटर और मटेरियल को मैं फ्रेम करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल मटेरियल्स आर मैटर बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल। लाइट इज अ मैटर, light is made up of photon particle but light is not material. So I repeat again, all materials are matter। जैसे यहाँ मैंने दिया, हम ग्लास का यूज करते हैं पानी पीने के लिए, सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, वुड फॉर फर्नीचर, पेपर फॉर राइटिंग। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको एग्जाम देनी है तो क्या मटेरियल चाहिए। हम ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स मतलब कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको लिटरेचर चाहिए, है ना।
तो ऑल मटेरियल्स आर मैटर बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल। ठीक है, अब एक बात रह जाती है जो वो है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी का मतलब है वी कांट सी बट फेल्ट। आपके अंदर एनर्जी है तो एनर्जी दिखाई नहीं देती। हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये सब हम फेल्ट कर सकते हैं, वी कांट सी इट। गर्मी लगती है तो गर्मी दिखाई नहीं देती। ठीक है, ठंडी लगती है तो ठंडी दिखाई नहीं देती। लाइट वेव्स आइदर इन अ पार्टिकल फॉर्म और इन अ वेव फॉर्म दिखाई नहीं देते, सिर्फ आप लाइट को महसूस कर सकते हो। यू कैन फील द लाइट, यू कैन फील द हीट, यू कैन फील द कोल्ड, बट यू कांट सी एनीवन आउट ऑफ दिस। रिमेंबर। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एक बार मैं यहां पे समझा दूं आपको। मैटर आर classified two ways: physical classification and chemical classification. Physical classifications further matter divided into three sections: solid, liquid and gas. यहां तक कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीन पार्ट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब केमिकल की बात आती है, देन केमिकली matter divided into two sections: pure substances and mixture. In surrounding area we hardly come across to pure substances. ठीक है, वो बनाना पड़ता है। दवाइयाँ जो है वो प्योर सब्सटेंसेस है तो बनानी पड़ती। लेकिन हम हमारे सराउंडिंग में जो भी है वो मिक्सचर्स या तो सॉल्यूशंस। ये क्लासिफिकेशन अगर समझ में आ जाए तो मैं आगे चलूंगा। इतना आपको थोड़ा समझना है। मैटर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट: फिजिकल एंड केमिकल. Physically, matter divided into three parts: solid, liquid and gas. Chemically, matter divided into two parts: pure substances and mixtures. ये सब मुझे समझाने हैं आपको। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस, ये पूरा क्लासिफिकेशन आप लिख लेना। मैं अलग से भी इसका पीडीएफ आपको भेजूंगा, पहले ध्यान से वीडियो देख लेना। तो ये तीन पार्ट फिजिकल के, बहुत इजी है। केमिकल के, प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये भी इसी चैप्टर में मुझे डिटेल में समझाना है। एलिमेंट्स मीन्स पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर थ्री टाइप्स: मेटल, सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स। जैसे आप बोलते हो आयरन, गोल्ड, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है। सेमी मेटल सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉन मेटल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लाइक दैट। अब कंपाउंड की जब बात आती है तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, और द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, उसके हिसाब से ऑर्गेनिक नाम दिया। एंड इनऑर्गेनिक मीन्स द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट and not observed in non-living thing that we have to supply from outside. Salt is supplied from outside. लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होती है। मिक्सचर्स आर डिवाइडेड। अब प्योर सब्सटेंसेस, इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, ये स्पेलिंग जरा देख लेना, GENEOUS, GENEOUS। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ मेरा जो मेन एम है आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन समझाना है। अब आप बोलेंगे कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या है, तो उसकी अलग थियरी होगी। ये कंपाउंड्स क्या है तो वो हम अलग से लेंगे। कंपाउंड्स, व्हाट इज कंपाउंड, गिव एग्जांपल, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के लिए भी हम अलग थियरी लेंगे।
ठीक है, अभी मेरा एम इतना है कि आप मैटर का क्लासिफिकेशन समझ लो, कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट the study of matter, transformation of matter, changes takes place in matter, formation of matter, preparation of matter. Okay, तो यहाँ पे मैं ये जो लेक्चर है वो ख़त्म कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से एक इंस्ट्रक्शन, ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा कंटेंट आपको अपनी फेयर नोट में लिखना है, क्वेश्चन वाइज। आगे मैंने वीडियो में दिया था वो आपने लिख लिया है। ये क्वेश्चन के नंबर देते रहना, ये उसमें कोई क्वेश्चन शायद नहीं था तो ये नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके बाद आपको बैठ के एक जगह पे इसको प्रिपेयर करना है समझ के। अब अपना सब मटेरियल बंद करना है, वीडियो भी नहीं देखना है, मटेरियल भी यूज नहीं करना है, और अपनी एक रफ नोट लेके बैठ जाना है, ठीक है। Orally you have to write question, these both questions, and you have to submit it on my WhatsApp number, and my WhatsApp number is 98258 59986। जिस दिन आप वीडियो देखते हो उसी दिन शाम तक, शाम को 10 बजे तक, और किसी केस में अगर आपको लेट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लेट नाइट भी भेज सकते हो, लेकिन उसी दिन से इन साइंस स्ट्रीम रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन खत्म कर देने, बाद में जब कंटेंट थोड़ा चलेगा तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए पेपर भी सेंड करूंगा जो आपको लिख के मुझे भेजने होंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इतना ही करना है। तो आज शाम तक ये पूरा कंटेंट मेरे मोबाइल पे आपको भेजना है, मैं देख के बताऊंगा कि आपका काम कैसा है, आपने कैसा लिखा है, ठीक है, क्या करेक्शन करना है, वो सब मैं आपको। अभी तो कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव तो ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, अगर पेपर इजी निकला 11th में तो ये पूछ सकते हैं 2 मार्क में कि व्हाट इज मैटर, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 1 मार्क्स डेफिनेशन का, 1 मार्क क्लासिफिकेशन का। अब जाके धीरे 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 जो है वो कंसेप्ट जो है वो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ठीक से देख लेना और दोनों क्वेश्चन लिख के, और बाद में मैं कंटेंट भी बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे आप लोग मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे मैं कंटेंट भी बढ़ाता जाऊंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।